and welcome to all of you behalf of Kushmanda Education. Today we will discuss about BRICS 2021 समिट जो 9 सितंबर 2021 में इंडिया में हुआ है। इस बार का जो थीम था इस समिट का वो कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस था, जिसमें निरंतरता, समकेन और आम सहमति पर डिस्कशन हुआ था। इस थीम पर यह टॉपिक जो है IAS और HCS मेन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। The 2021 BRICS Summit is the 13th annual BRICS Summit, an international relation conference attended by the head of the government of the 5 member states like Brazil, Russia, India, China and South Africa. It will be the third time that India will be hosting the BRICS after 2012 and 2016. यह समिट नई दिल्ली में ऑनलाइन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एज ब्रिक्स सेलिब्रेटेड इट्स 15th एनिवर्सरी दिस ईयर, एज चेयर इंडिया विल वर्क ऑन स्पेसिफिक डिलीवरेबल अक्रॉस ऑल 3 पिलर्स ऑफ इंडिया ब्रिक्स कॉर्पोरेशन 2021, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह जान लें, how did the BRICS form and develop? BRIC is the grouping acronym coined to associate 5 major emerging national economies, namely Brazil, Russia, India, China and South Africa. Jim O'Neill has been called a currency guru. In 2001, the British economist Jim O'Neill coined the term BRIC, describe the 4 emerging economies: Brazil, Russia, India and China. In 2009, the leader of 4 countries held their meeting in Russia, developed their corporation. A year later, South Africa joined the BRIC group and added their name as BRICS. BRICS member newly industrialist countries is the large population. Together, they have 3 billion people 2015. For 42% of the world population, they also characterized with an increased influence with regional affairs. The BRICS countries also have combined GDP above 16 trillion US dollar. That's 20% gross world product. And according the Chinese Ministry of Commerce, trade between BRICS countries reached 350 billion US dollar in 2014, up 13% from 2012, and the figure only count 10% of foreign trades value of the 5 countries that year, which means their potential for the further trade compacts. Economical Financial Cooperation Society BRICS member also work closely in host their issues and such as climate changes, UN Security Council's reform and lastly fighting poverty. एंड 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्णन करने के लिए रचना की थी। एंड 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द की रचना की। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक परिवर्णी शब्द है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। एंड 2009 के बाद हर साल यह बैठक आयोजित की जाती है। ब्रिक्स टावर का जो हेडक्वार्टर है वो पूर्व ओरिएंटल फाइनेंशियल सेंटर जो है शंघाई में है, तो हेडक्वार्टर को आप ब्रिक्स टावर बोलते हैं। एंड फाउंडेड जून 2006, पर्पस इसका पॉलिटिकल है एंड फंडिंग जो है इसके मेंबर स्टेट्स करते हैं। BRICS is an acronym for the economic bloc of countries consisting of Brazil, Russia, India and China. In 2010, South Africa joined the BRIC group. Economists believe these 4 nations will become dominant suppliers of manufactured goods, service and raw material by 2050 due to low labor and production cost. यानी BRIC जो है ब्राजील, रूस, भारत और चीन से मिलकर जो बना है देशों के जो आर्थिक गुटों के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। एंड 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक ग्रुप में शामिल हो गया। तो अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इन चारों देशों से जो निर्मित वस्तुएं, सेवाएं और जो जितने भी गुड्स हमें प्राप्त होंगे उसका जो आपूर्ति करता है ये 5 देश बन जाएंगे, यानी ब्रिक्स बन जाएगा। और कच्चे माल को 250 तक जो है कम श्रम और उत्पादन लागत के कारण ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन की जाएगी।
थ्री पिलर ऑफ ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स के 3 स्तंभ कौन से हैं? तो पहला आपका पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, टू एनहांस कोऑपरेशन एंड डायलॉग ऑन इशू ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल पॉलिटिकल स्पेस एज वेल एज द रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम टू मेक इट रेलेवेंट फॉर द 21st century. Cooperation on countering terrorism and its financing remains an important element under this pillar. यानी वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग और बातचीत बढ़ाने के लिए वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में विकास के साथ साथ बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के लिए इसे 21वीं सदी के लिए रेलेवेंट बनाने के लिए आतंकवाद का मुकाबला करने और वित्त पोषण पर सहयोग इस स्तंभ के तहत एक महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है, जो इसका फर्स्ट पिलर है। सेकंड पिलर है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, यानी आर्थिक और वित्तीय, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी थ्रू एक्सपेंशन ऑफ इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन इन सेक्टर्स सच एज ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एनर्जी, finance and banking, etc. BRICS Corporation under this pillar is aimed to promote collaborative approaches as well as innovative method for the attainment of sustainable development goals. यानी व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचे, लघु और मध्यम उद्योगों और ऊर्जा, वित्त और बैंकिंग आदि क्षेत्रों में अंतर ब्रिक्स जो है सहयोग के विस्तार के माध्यम से पारस्परिक समृद्धि के लिए आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस स्तंभ के यानी इस पिलर के तहत ब्रिक्स सहयोग का उद्देश्य जो है वो विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोणों के साथ साथ अभिनव जो है तरीकों को भी बढ़ावा देना है। पिलर है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, यानी सांस्कृतिक और लोगों के बीच का आदान प्रदान, टू एनरिच इंफ्रा ब्रिक्स पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इन cultural, academic, youth, sports, business through regular exchanges among parliamentarian, young scientists, etc. are also held under this pillar of BRICS Corporation. यानी नियमित आदान प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक, अकादमिक, युवा, खेल, व्यापार में लोगों के बीच अंतर ब्रिक्स जो है लोगों को समृद्ध करना इसका मोटिव है। एंड ब्रिक्स सहयोग के इस स्तंभ के तहत सांसदों, युवा वैज्ञानिकों आदि के बीच आदान प्रदान भी आयोजित किया जाता है। कलर ऑफ ब्रिक्स यानी ब्रिक्स के रंग, 210 समिट लोगो used 4 color for the 4 letter of BRIC. Brazil is green, Russia is blue, India is orange and China is red. The inclusion of South Africa in 211 is visualized with the color yellow. यानी 2-10 शिखर सम्मेलन लोगो जो है ब्रिक के 4 अक्षरों के लिए 4 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले ब्राजील के लिए हरा, रूस के लिए नीला, भारत के लिए नारंगी और चीन के लिए लाल। लेकिन 211 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद जो है पीले रंग की कल्पना की गई। Why is BRICS important to India? India using the platform can help balance the Russia-China axis. Also, the role of BRICS in G20 becomes important and hence India remains a part of the design of global economic policies and promoting financial stability. India's anti-terrorism measure can be discussed and catered to using the platform. Through BRICS, India gets to engage with China, which seems to be a roadblock for the country's entry into the United Nations Security Council, यानी UNSC, as a permanent member and NSG. भारत इस मंच का इस्तेमाल करने में रूस चीन दूरी को संतुलित करने में मदद मिल सकती है इससे भारत को, इसलिए वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड साथ ही G20 में ब्रिक्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए भारत वैश्विक आर्थिक नीतियों के डिजाइन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसका हिस्सा बना। भारत के आतंकवाद विरोधी उपायों पर चर्चा की जा सकती है और मंच का उपयोग करने के लिए पूरा किया जा सकता है, इसे कि भारत ने इसको क्यों चुना और क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। तो ब्रिक्स के माध्यम से भारत को चीन के साथ जुड़ना जो पड़ता है, जो स्थायी सदस्य और NSG के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में देश के प्रवेश के लिए एक अंधी गली प्रतीत होती है, क्योंकि चाइना से भारत के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है।
इसके बाद हम आते हैं कीवर्ड्स ऑफ ब्रिक्स 2021 यानी हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स ऑफ सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग इंडियाज चेयरमैनशिप दिस ईयर 2021 एग्जांपल एन एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स अ वर्चुअल ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एक्सेट्रा। यानी इस वर्ष 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई पहलों पर उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाए तो रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता हुआ है एंड एक आभासी जो है ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र भी मोटिवराय एंड हरित पर्यटन पर ब्रिक्स गठबंधन, ये सब जो है हाईलाइटेड हैं या कीवर्ड्स हैं ब्रिक्स 2021 के। Highlighting the leading role that BRICS countries can play in the post-COVID global recovery, Prime Minister called for enhanced BRICS cooperation under the motto of Build Back Resiliently, Innovatively and Credibly and Sustainably। यानी कोविड वैश्विक सुधारों के बाद ब्रिक्स देशों की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बिल्ड बैक लचीला एंड अभिनव विश्वसनीय और टिकाऊ के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। और जिस टॉपिक पे चर्चा हुई वो है आपका अडॉप्टेड ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, यानी ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी इसमें डिस्कस किया गया। It defines the approach and actions of the BRICS countries towards area of counter-terrorism cooperation, which includes countering radicalization and online terrorism threats, border management, information, intelligence sharing, etc. यानी यह आतंकवाद विरोधी सहयोग के क्षेत्रों के प्रति ब्रिक्स देशों के दृष्टिकोण और कार्रवाइयों को परिभाषित करता है। यानी कीवर्ड्स एक इसका ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड जिससे जो है कट्टरता और ऑनलाइन आतंकवादी खतरों का मुकाबला करना एंड सीमा प्रबंधन, सूचना, खुफिया जानकारी साझा करना आदि सभी इस सबमिट में शामिल रहे। उसके बाद अडॉप्टेड दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा को अपनाया गया या द डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग दैट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सुधार का आह्वान किया गया था एंड इट इज द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिक्स हैज टेकन अ collective position on strengthening and reforming multilateral systems। यानी यह पहला मौका है जब ब्रिक्स के बहुपक्षीय प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया और सुधार पर सामूहिक रूप जो है सामने आता है, सबकी सहमति रही पांचों देशों की इस पर। It also called for an inclusive intra अफगान डायलॉग फॉर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इसमें अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए समावेशी अंतर अफगान वार्ता भी की गई। अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान द ब्रिक्स लीडर आल्सो टुक अप द कॉन्फ्लिक्ट्स इन म्यांमार, सीरिया, द टेंशन इन द कोरियन पेनिनसुला एंड इजराइल फिलिस्तीन वायलेंस एंड अदर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। यानी अफगानिस्तान के अलावा जो है ब्रिक्स नेताओं ने म्यांमार, सीरिया, कोरियाई प्रायद्वीपीय में जो तनाव है, इजराइल फिलिस्तीन में जो हिंसा है एंड अन्य क्षेत्रीय विवादों को भी उठाया, उस पे भी डिस्कस किया गया इस सबमिट में। कोविड-19 यानी इस पे भी डिस्कशन हुई, ये भी कीवर्ड है इंपॉर्टेंट। नोटेड द प्रपोजल मेड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO फॉर द वीवर ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी TRIPS मैकेनिज्म टू इंश्योर अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड। यानी दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन का तेजी से विस्तार जो है सुनिश्चित करने के लिए संपदा अधिकार ट्रिप्स यानी तंत्र के व्यापार संबंधी पहलुओं को माफ करने के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा किए गए प्रस्तावों को भी नोट किया गया, उस पर भी चर्चा की गई। एंड पॉइंट्स देख लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स ऑफ ब्रिक्स 2021। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, ब्रिक्स नेशंस रिस्पॉन्स टू कोविड-19 यानी कोविड-19 पर ब्रिक्स राष्ट्रों की प्रतिक्रिया एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज यानी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के सामाजिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और उपयोग एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB एक्टिविटीज यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक गतिविधियां एंड फिनटेक जो है उस पे SME एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी SME और वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक एंड ब्रिक्स जो है कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA, ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। तो ये आपके मेन पॉइंट थे और उसके लिए आपको ये
12 सबमिट्स की डिटेल दे दी है जो आज तक ब्रिक्स की हुई है। ये जो थी 13th थी और जो 14th है वो अगले साल चाइना में होगी, ऐसा डिस्कशन में पॉइंट रखा गया है। तो उसके बाद ये जो है आपका क्वेश्चन जो है करंट अफेयर 2021 में इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? आपके एसए के लिए और जो है आपके जीएस के पेपर के लिए, उसमें भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ सकता है, इस पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने ये सारी डिटेल्स जो हैं बहुत ध्यान से देखनी है और इसी तरह से मैं आगे भी करंट अफेयर्स की डिटेल्स आपको दूंगी और इस तरह से आपको जो है एसए और जीएस के जो करंट अफेयर पे क्वेश्चन आएंगे उसमें काफी हेल्प मिलेगी। और किसी भी टाइप की आपको और जो हेल्प चाहिए टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, मेंस के एचसीएस या आईएएस के भी जो भी कोई आपको मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। थैंक यू।